It is richly ironic, it's divine karma actually, that I, the lady MP, who was illegally witch hunted by the government, wrongly expelled by ethics committee, which had no power to expel, after a motion in which I was not allowed to speak, where the speaker, in violation of every principle of natural justice, did not allow me to defend myself, today I am opening the debate for my party in a motion of no confidence against that very speaker. You can't run away from karma. Dr. Ambedkar said that Parliament belongs to the opposition and the government should always be on trial. On the anvil, he called it, to ensure accountability. The role of the speaker is that of a neutral arbiter and a keeper of the order of the House. This is absolutely vital to the function of Parliament. John Bercow, the Speaker of the UK House of Commons, said, I never aspired to be Speaker of the House of Commons simply so I could say I am the Speaker of the House of Commons and tell my children that. So it can't be a matter of ego. It can't be a matter of personal legacy. The post is far beyond that. It is a fitting tribute to the vibrancy of India's democracy and the strength of India's dissenting voices that a motion of no confidence was moved against the very first Speaker of the Lok Sabha, G.V. Mavalankar, in 1954. He was accused of openly espousing the cause of the official spokesperson of the ruling party in all matters and constituted a serious danger to the functioning of the Lok Sabha. Pandit Nehru, who was PM then, participated in the debate, and he said that more time should be allotted to the opposition than to the government benches. Pandit Nehru as Prime Minister said this. What is the tradition we are following today? In the next decade, in 1966, there was a second motion of no confidence against a sitting speaker, against Sardar Hukum Singh. And there it was claimed that he was arbitrarily disallowing questions likely to cause acute embarrassment to the Prime Minister, to ministers, to top leaders and government officials. Sounds familiar? Does it sound familiar or not? 20 years later, in 1987, again a motion was moved against the then Speaker Balram Jakar. Moving the motion was a future Speaker, CPM Somnath Chatterjee. And he said that Parliament is as much in danger from a muted Parliament than from executive authoritarianism. This is what Somnath Chatterjee said. The resolution was critical of Jakar's rulings, which denied MPs the right to move adjournment motions. What do we have today? We have the Honorable Speaker who has not allowed a single adjournment motion. Every morning we come here and like a stuck record, what do we hear? किसी भी स्थगित प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं दिया गया. Every morning we hear this. बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोइत्रा जी. इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया. वो रोती रही और रो के आके बैठ गई. अभी भाषण दे रहे. और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे. अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया. उस समय इनकी नेता ममता जी एनडीए की अंग थी, एनडीए में बैठती थी, तो बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार. तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है, तो इनका देख लीजिए. अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए. आप जब सदन चलता है, सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे. आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका. इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक. महोदया, इस सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं. हम आपको दवा देंगे आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक.
आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया, यह सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च है। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है। ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं सदन के काम में व्यवधान डालकर। जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता, नियम बनता। लेकिन खैर, अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो ये कोई नया चीज नहीं है। ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं, उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, उनके विरासत में उनको मिला है। ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे, और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोध। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है। कांग्रेस पार्टी की विरासत में है लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, उतना ही इनको खुशी होती है। अब ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति का भी भाषण होता है संयुक्त अधिवेशन, उसमें भी व्यवधान करते हैं, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति इस देश के गौरव है, इस देश का सम्मान है, और यह भी बोल रहे हैं बीच से पीछे से, दादा उस महामहिम राष्ट्रपति का और महिला का अपमान जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आपको शर्म आने के बजाय आप उस पर व्यंग कर रहे हैं। यही तो है आपका, एक आदिवासी का, एक महिला का, जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, वो आपके प्रदेश में जाती हैं, आपकी सरकार उनका अपमान करती है। ये तुष्टीकरण है, ये आपका काम करता है।